एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे। हमारे पास है एक स्पेशल आइडेंटिटी, डिफरेंशियल आइडेंटिटी। इसमें ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस आइडेंटिटी का हम प्रूफ देखेंगे यूजिंग लेवी-सिविता सिंबल्स एंड क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, राइट? जो कि लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज relevant to our discussion. Now what is this? This thing is basically the curl of a curl of a vector. ये आइडेंटिटी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या तो देख चुके हैं या देखेंगे, और फिजिक्स में मे बी अदर प्लेसेस ऑल्सो यू विल फाइंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी. सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रूफ जो हमने लास्ट टाइम किया था using the Kronecker delta, that A cross B cross C, the triple vector triple product is equal to back cap rule लगा के, right? In the similar sense, the way we derived this, we are going to derive this identity, and let us see how we do it. So first, similar to what we did last time, हम firstly इस component को देखेंगे, इसका kth component देखेंगे हम, the kth component. So what will the kth component be? So it will be written in terms of the Levi-Civita symbol KLM partial derivative del L Fm. Okay, where we imply where the sums are repeated, then that implies the Einstein summation convention. That means this is equal to summation L and M epsilon KLM delta L Fm. यानी जो indices repeat हो रहे हैं L and L here and M, they are summed over there all values. So this is the Einstein summation. We're going to use this. Okay, so this is the kth component of the first part, del cross F. Now हम इस पूरे का ith component देखेंगे, just to be general. So we will talk about the ith component of the curl of F, right? And this in a similar sense will be written as Aij k, okay, into del j into the kth component of del cross F. ये क्या चीज़ है? दिस इज ऑलरेडी वी आर रिप्लेस फ्रॉम हेयर यूजिंग दिस इक्वेशन आई जे के डेल जे एप्सिलॉन के एल एम डेल एल एफ एम. फाइन, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे, जे के एप्सिलॉन के एल एम डेल जे डेल एल एफ एम, एंड यूजिंग द पॉजिटिव परम्यूटेटिव कंडीशन दैट कि हमारे पास जो हमारा Levi-Civita symbol है, since ijk is measured in this way, we can similarly measure along kij without any change of sign or any other changes. It will be the similar thing, that is epsilon kij is equal to epsilon ijk, right? So similarly also epsilon jki is same value. तो हम यहाँ ये लिख लेंगे epsilon kij epsilon klm del j del l fm. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो दो प्रोडक्ट है लेवी-सिविता सिंबल्स का, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन. हमारे केस में दिस विल बी इक्वल टू, जैसा लास्ट क्लास में आपने देखा था, वेरी इजी है, आप देखिएगा. आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द लास्ट लेक्चर. डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल डेल्टा जे डेल्टा एल एफ एम. इसमें हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग खोलेंगे, हम ब्रैकेट को खोल के एक्सपेंड करेंगे. डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम फाइन, एंड इसमें हमारा L विल बी इक्वल टू I, सो दिस विल बिकम डेल्टा आई आई, एंड वील टेक M इक्वल टू J,
So this will become delta jj and delta j here, and L is equal to I and M is equal to J again. Fine. So it will be Fj minus delta I the Jj the J here delta J and Fi. Now ये चीज़ें तो 1 हो जाएंगी. We are left with delta I delta J Fj delta J square Fi. तो जो ith component है it is written as like this. अब ये तो ith component है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि this thing is nothing but del dot f, ये वाला del dot f, राइट. ये वाला del dot यहाँ पे जो है this thing is nothing but del dot f. ओके. जो हम सभी टर्म्स को i के अलावा j के टर्म्स को भी हम इकट्ठा करेंगे और हम लिखेंगे. ओके, दिस इज ऑल्सो del स्क्वायर एक्टिंग ऑन एफ आई ith. ओके, बेसिकली विच इज ऑल्सो इक्वल टू del स्क्वायर एफ का ith कंपोनेंट, एफ वेक्टर पे ith कंपोनेंट. तो हम जब सारे कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे तो हम पाएंगे दिस इज नथिंग बट del the gradient operator operating on del dot f minus del square f vector. Okay, so ये proof कर, this is our simple, very simple straightforward proof for this identity, our identity. The most beautiful thing about these proofs using Levi-Civita symbol and Kronecker delta etc. is कि इसमें कुछ ज़्यादा मतलब you don't have to be getting very confused. आपको बस properties ध्यान रखनी है Levi-Civita symbol की. Kronecker delta is very straightforward. Levi-Civita symbol एक बार समझ लें तो बहुत सारी और आइडेंटिटीज़ हैं जो सिमिलर वे में कैलकुलेट हो जाएंगी बहुत ही क्विकली. आप देखिए बहुत ही छोटा प्रूफ है, एक पेज से भी ऑलमोस्ट एक पेज में हो गया है. हम तो नहीं बोलूँगा बट एक पेज में हो गया है, उसमें भी काफ़ी छोटा है. आप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जब आप दूसरे प्रूफ करने लगेंगे तो इट विल बी वेरी इजी. और ये प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं एग्ज़ाम्स में, और इनको आप वर्कआउट करेंगे प्रॉब्लम्स को तो आपकी मतलब यू विल बी इवन मोर बेटर एट इट. और एज अ टीचर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम हैंडलिंग को बहुत अच्छे से समझ लें, जहाँ आप कॉम्प्लिकेटेड जैसे इंडाइसेस वाले जो समेशंस हैं इन सब आप कर सकें कंफर्टेबली, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी और क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे समेशंस काफ़ी आते हैं. एक बार इन पे हैंडलिंग पा ली तो आप वो बहुत आसानी से वेरी इजीली आप क्लासिकल मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी जैसे सब्जेक्ट्स कर पाएंगे, इवन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. और इंजीनियरिंग में भी ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं इससे. सो इट्स अ वेरी डाइवर्स, इट हैज़ वेरी डाइवर्स एप्लीकेशंस. इसलिए मैंने इस पर 2 लेक्चर्स लगाए हैं. दूसरा तो आपका ये वाला प्रैक्टिस ही हो गया एक तरीके से, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे कंसेप्ट्स बता दिए थे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव टुवर्ड्स अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक जस्ट फॉर चेंज ऑफ मूड. हम ग्रीन्स फंक्शन को ट्राई करेंगे. आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट ऑल्सो. We will also look up the green function problem in our next lecture, right? तो आप रेडी रहिए, आप पढ़ते रहिए, राइट. एंड गुड लक टू यू. और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट्स में डालिए. आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके, थैंक्स अ लॉट. गुड बाय, टेक केयर.